I hope everyone have revised this all. I'm going to ask you one by one and you have to give the answer. Yes, Priyal Gupta. Unmute yourself, Priyal. Yes, Priyal. ma'am. Huh. Yes, ma'am. Yesterday you have not joined the class. Yes, ma'am. What happened? Ma'am, due to network connectivity, and my phone was also dead. Okay. Have you revised these all definitions? Yes, ma'am. Okay. Define triangle. Triangle is a three-sided polygon. Very good. And it has three sides, three vertex, and three angles. Okay, dear. Yes, ma'am. Sableen, unmute yourself. Yes, ma'am. The sum of three angles of the triangle is equal to बच्चे तीन साइड्स जो होती है एंगल्स की ट्रायंगल के तो उसका क्या सम होता है बोलो बच्चे मान्यता अनम्यूट योरसेल्फ Ma'am, 180 degree. वेरी गुड द सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री 180 एंड degree. have हाँ अपूर्ति सानी अनम्यूट योरसेल्फ अपूर्ति अनम्यूट करो अपने आप को अपूर्ति यस पायल शर्मा पायल बच्चे अनम्यूट योरसेल्फ पायल अनम्यूट योरसेल्फ Yes, ma'am. yes बंद करो. but Yes, the ma'am. sum of the lengths of any two sides of the triangle is greater than the length of its the sum of the lengths of any two sides किसी भी दो sides की lengths को आप plus करोगे तो वो क्या होगा is greater than the length of the बोलो बच्चे the sum of the lengths of any two sides of the triangle is greater than the length of its yes give answer yes खुशी unmute yourself Yes, ma'am. हाँ बोलो बेटा आंसर It's third side. Very good. So how it comes, those who have not attended the class yesterday, just have a look. जी ये कैसे आया वो मैं आपको बता रही हूँ देखो जैसे आपको मैंने बोला था कि कल हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 of exercise 7.6 everyone open your book देखो बेटा मैंने आपको कल बोला था हम करेंगे एक्सरसाइज 7.6 क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्वेश्चन क्या है कैन यू ड्रॉ ट्राइंगल्स विद द फॉलोइंग मेजरमेंट्स ये जो आपको मेजरमेंट्स दिए हैं जैसे ए पार्ट है 80 डिग्री 60 डिग्री 110 डिग्री अब बताओ कि आप इन मेजरमेंट से क्या ट्राइंगल बना सकते हो इज इट पॉसिबल फर्स्ट यू हैव टू प्लस ऑल ठीक है आप इन सबको प्लस करोगे देखो yes good बच्चे those who are saying no good 80 degree plus everyone plus and give me the answer please plus 60 degree plus 110 degree ये बताओ इन सबका प्लस करके क्या आया
हाँ तविशा, इट्स ओके बेटा, नो इट्स ओके, इट कांट बी पॉसिबल, बट व्हाई, गिव रीजन। ये देखो ये किसके इक्वल आता है, 250 डिग्री के। अब मुझे बताओ, कोई बच्चा मुझे बताए ये क्यों पॉसिबल नहीं है। एनीवन? यस सानवी महाजन। Excuse me, ma'am. यस बेटा। Ma'am, because the sum must be 180 degree. Very good. Because the sum of the angles of the triangle is equal to 180 degree. लेकिन ये 180 से ज्यादा आ रहा है, so this is no. This is not possible. ठीक है? Yes हरलीन। Yes, ma'am. Yes प्रगुनी, you want to ask anything? प्रगुनी? मैम ये 250 कैसे आया, मुझे समझ नहीं आई। बेटा आपने इन सबको मैंने प्लस किया ना, 80 प्लस 60 प्लस 110, है ना? यस मैम। तो जब मैंने इन तीनों को प्लस किया, मेरा आंसर आ गया 250। लेकिन यस मैम। सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल मैंने अभी पढ़ाया आपको, फिर उसका सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल किसके इक्वल है? 180 के इक्वल है ना? इट्स Yes, प्रॉपर्टी ma'am. 1। सो अगर 180 नहीं निकल रहा है तो इट मींस दैट इज रॉन्ग। ठीक है? Okay, ma'am. सो कैन यू ड्रॉ ट्राइंगल विद दीज मेजरमेंट्स? नो। ठीक है? सो everyone please do B part and C part and give me the answer. Do B part and C. Okay. Excuse me, ma'am. Yes बच्चे। Ma'am, B part is possible because it is 180. Very good. It's right. And ma'am, C part is not possible because it is 170. Very good. So in this question only B part is possible. A and C is not possible. So you have to do it in your book only. Okay, ma'am. Ma'am, we will only write yes or no. हाँ, if the question come, no, you have to give reason also. You have to give reason also. If it is no, you have to write down because the sum of the angles of the triangle is equal to 180 degree. So it is not possible. Okay. Ma'am, we will do it in notebook. Yes, you can do it. You have to give reason also कि क्यों नहीं आया ये. Okay. Okay, ma'am. Okay, ma'am. No, anybody want to ask anything about question number 3? No, ma'am. Okay, it's clear to everyone. Now come to the question number 4. I told this is property number 2. We have done yesterday 2 properties. First property, sum of the angles of the triangle is equal to 180 degree. That is related to question number 3 only. Now come to the question number 4. Yes, Meher, you want to ask anything, Meher? Yes, Meher? Yes, ma'am. No, ma'am, I don't want. You want to ask anything? Ma'am, by mistake, my hand was raised. Okay, don't worry, beta. Aradhya? Aradhya, you want to ask anything? Aradhya, you want to ask anything? Ma'am. Aradhya? Yes, बच्चे, you want to ask anything? Yes, ma'am. हाँ जी Ma'am, बेटा I बोलो. can't understand. Ma'am, I can't understand C part of question number 3. बेटा आप सी पार्ट में सबको प्लस करके देखो क्या आंसर आया, मुझे बताओ जल्दी से. 55, 65 और 50 को प्लस करो. करो बेटा प्लस. आराध्या? आराध्या प्लस करो इनको. Ma'am, 170. हाँ तो बेटा इट इज इक्वल टू 180. क्या वो 180 के इक्वल आ रहा है? No, ma'am. सो इट इज नो.
बिकॉज द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल किसके इक्वल है? 180 के इक्वल है. अगर 180 नहीं आ रहा है सो इट इज नॉट पॉसिबल. इट्स क्लियर? Yes, ma'am. ओके बच्चा. शरीन, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? शरीन? Yes, ma'am. यस बेटा बोलो. मैम आपकी एक बार फिर से समझा दो क्योंकि कल भी मेरी क्लास कनेक्ट नहीं हो पाई थी और आज भी लेट ज्वाइन हुई है. बेटा जो प्रॉपर्टीज आपने कल रीड की थी जब मैंने मैसेज डाला था, No, ma'am. क्यों नहीं रीड की थी? बुक में दी हुई थी ना. मैंने क्या बोला था? मैम क्योंकि कल क्लास मेरी कनेक्ट ही नहीं हो पाई थी, मैं ज्वाइन ही नहीं कर बेटा पाई. जब मैंने जो आपने बेशक ज्वाइन नहीं करी, लेकिन मैंने ग्रुप में मैसेज डाला था कि रीड दीज प्रॉपर्टीज पेज नंबर. आप कहीं गए Yes, थे? ma'am. No, कहीं गए ma'am. हुए थे कहीं? तो फिर आपने उसको रीड किया, बुक खोली, Yes, ma'am. उसमें क्या पढ़ा आपने? सुनाओ आज मुझे. मैम वो समझ नहीं आया. क्या नहीं समझ आया? ट्राइंगल आपने देखा हुआ है ना कभी? फर्स्ट में सेकंड में शेप पता है ट्राइंगल की? Yes, ma'am. तो फिर झूठ क्यों बोला? मैम क्या एंगल तो समझ आया लेकिन एंगल नहीं आया. कौन सा एंगल नहीं आया? बोलो शरीन. आपने बुक खोली थी, उसमें क्या प्रॉपर्टीज रीड की? नहीं समझ आया? मैम क्या पढ़ा आप मुझे मैम ये ये बताओ. राइट एंगल वाला ट्रायंगल. बेटा वो तो मैंने अभी पढ़ाया ही नहीं. ओके मैम. क्या? वो तो मैंने अभी पढ़ाया ही नहीं है. अभी मैंने प्रॉपर्टीज करवाई है. आपने पीछे वाले कौन सा कह रहे हो आप? वो तो मैंने छुट्टियों से पहले करवाया था. नो मैम ये प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल. प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल मैंने आपको ये समझाया ना जो क्वेश्चन में. सम ऑफ एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल किसके इक्वल है? 180. हाँ बस. अगर 180 नहीं आ रहा है तो इट मींस दैट इज रॉन्ग. क्वेश्चन नंबर 3 समझ आ रही है शरीन? यस मैम. आपने सबको प्लस करना है. अगर आपका आंसर 180 नहीं आ रहा है तो इट मींस दैट इज रॉन्ग. ठीक ओके है? मैम. आज आप ट्राई करोगे. प्रबलीन, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? प्रबलीन, प्रबलीन, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? हाँ जी बेटा बोलो. मामा हैंड इज नॉट फ्लोइंग. यस बेटा जोर से बोलो. मैम मेरा हाथ नीचे नहीं हो रहा है. अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. हरमीन, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? बच्चे जिसने पूछना है वही हाथ ऊपर करो. सानवी राजपूत, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? मैम हमने सेकंड क्वेश्चन अभी करवाया है. बेटा अभी मैंने वो पढ़ाया नहीं ना, इसलिए मैंने कल मैंने थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टीज करवाई थी, तो इसलिए मैं थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट कर रही हूँ आज. फर्स्ट और सेकंड जब मैं पढ़ाऊंगी तब मैं आपको करवाऊंगी. मैम मैं इसलिए पूछ रही थी मेरी क्लास लेट ज्वाइन हो गई थी. कोई बात नहीं बेटा. ऐश्विका, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? ऐश्विका, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? एक्सक्यूज मी मम्मा एक और वाली करवाओगे? हाँ मैं करवा देती हूँ. महक, थैंक यू मैम. आपूर्ति सैनी, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? आपूर्ति. मैम by mistake that was. कोई बात नहीं बेटा. चलो ठीक है बेटा. और किसी ने पूछना है? महक प्रीत. महक प्रीत. एक्सक्यूज मी मैम. हाँ जी बेटा. मैम अभी आपने क्वेश्चन 3 कराया था. हाँ जी बोलो. मैम मुझे वो समझ नहीं आया. अभी मैं दोबारा से आपको बोल देती हूँ. ठीक है, बता देती हूँ. मेहर गुप्ता. ठीक है बेटा, सबको आ गया? अगर किसी का रह गया तो बता दो मुझे. आई एम गोइंग टू रिपीट. अब मैं क्वेश्चन 3 रिपीट मैम कर आ रही गई हूँ दोबारा समझ. से, ध्यान से. कोई बात नहीं, अब मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, आप देखो. बेटा आपका क्वेश्चन है, कैन यू ड्रॉ ट्राइंगल्स विद द फॉलोइंग मेजरमेंट्स. आपको ए पार्ट में दिया है 80 डिग्री, 60 डिग्री, 110 डिग्री. आप इन तीनों को प्लस करोगे. अगर आपका आंसर 180 आता है तो इट मींस यस
बिकॉज हमने कल प्रॉपर्टी की थी सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, प्रॉपर्टी 1 देखो अपनी बुक में पेज नंबर 138 में दी है। प्रॉपर्टी 1, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर 180, अगर इन तीनों को प्लस करके 180 से ज्यादा आता है या कम आता है, इट मींस दैट इज रॉन्ग। फिर आप रीजन भी दोगे, यहाँ लिखा है गिव रीजन। आप क्या रीजन दोगे? आप लिखोगे सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, समझ आई है? ओके मैम। और किसी यस मैम। Now come to the question number 4. Can you draw triangles with the following measurements? Give reason. अब बच्चे हमने कल प्रॉपर्टी 2 की थी। The sum of page number 138, the sum of the lengths of any two sides of a triangle is greater than the third side. It means that, देखो बच्चे मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। ओके मैम। देखो कैसे आता है ये, कि इसका मतलब है आपके पास बेटा एक ट्राइंगल दिया हुआ है। ठीक है, आपके पास एक ट्राइंगल दिया हुआ है। सपोज दिस इज 6 सेंटीमीटर, पी क्यू आर 4 सेंटीमीटर और ये है 5 सेंटीमीटर। ओके मैम। फिर आप क्या करोगे? देखो प्लस आप देखोगे क्या प्रॉपर्टी है। आप अब ध्यान से सुनना। आपके पास है द सम ऑफ प्रॉपर्टी 2, द सम ऑफ लेंथ। यहाँ पे आप एंगल नहीं देखोगे, एंगल होते हैं ये जो बीच वाले होते हैं। ओके मैम। ठीक है, लेंथ्स हो गई ये, जैसे पी क्यू कितना है 4 सेंटीमीटर, पी आर कितना है 6 सेंटीमीटर, क्यू आर कितना है 5 सेंटीमीटर। दीज आर द लेंथ्स। ठीक है, आपकी प्रॉपर्टी 2 क्या है? द सम ऑफ, सम मीन्स प्लस, सम मीन्स SUM मीन्स प्लस, द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स। आप किसी भी दो साइड्स को प्लस करो, उसका आंसर हमेशा बड़ा आना चाहिए थर्ड साइड से। ठीक है, अब जैसे मैंने 4 सेंटीमीटर लिया और 6 सेंटीमीटर को प्लस किया, अब मेरे पास क्या आ रहा है इन दोनों को प्लस करके? 10 सेंटीमीटर। अब ये बड़ा है ना 5 सेंटीमीटर से, यस मैम। ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर। समझ आ गई? यस मैम। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 है, आप दो साइड्स को प्लस करो, वो बड़ी आनी चाहिए थर्ड साइड से। ओके मैम। ठीक है, सारे बच्चे करो ट्राई, सारे बच्चे ट्राई करो। और आपने रीजन भी देना है। रीजन क्या देना है? प्रॉपर्टी वाला ही। मैम हम एंगल अपनी मर्जी से लिख सकते हैं ना? हाँ, नाम अपनी मर्जी से दे सकते हो। ठीक है, नाम आप अपनी मर्जी से दे सकते हो, जैसे 7 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, यू हैव टू प्लस एनी टू साइड्स। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बेटा। मैम जो ये 4th क्वेश्चन का ए पार्ट है, मैम इसको करेंगे 14 और 6 को, और आप 14 और किसी भी 7 किसी भी दो साइड्स को प्लस कर सकते हो। यस मैम। मैम मैंने 14 और 7 को प्लस किया तो उसका आंसर 21 आया, पर जब मैंने पीछे देखा इसका आंसर तो वहाँ पे लिखा है कि नो बिकॉज सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ टू साइड्स इज लेस देन द थर्ड साइड। वो आप छोड़ दो उसको। आपने यू हैव टू प्लस एनी टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। ओके मैम।
Excuse me, ma'am. Ma'am, if we are adding any number with 14, it is becoming greater. And ma'am, if we are adding 7 and 6, it is पीछे आंसर बेटा becoming गलत 4. होगा, पीछे आंसर गलत होगा। Okay, ma'am. आपकी प्रॉपर्टी ये है कि आप कोई भी टू साइड्स को प्लस कर सकते हो। दिव्यांशी, अनम्यूट योरसेल्फ। Ma'am, I have done a part. Can you see? आप बताओ आपका क्या आंसर आया, यस और नो? I'm 21 cm. Yes. हाँ बेटा, इसका आंसर अगर आप 7 और 6 को प्लस करते हो तो नो आएगा, अगर 7 और 14 को प्लस करते हो तो यस आएगा। तो ये दोनों वे से ठीक होगा, Okay, ma'am. समझ आई? अगर कोई बच्चा 7 और 6 को प्लस कर रहा है तो फिर आएगा आपका नो, अगर 7 और 14 को प्लस कर रहा है तो फिर आएगा यस। तो आप ये मत करो कि पीछे क्या आंसर दिया है, ठीक है? Okay, ma'am. आपने वो नहीं देखना है कि पीछे क्या दिया है, इसकी प्रॉपर्टी आप अप्लाई करोगे कि सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। इसका मतलब है कोई भी दो साइड्स को प्लस करोगे, ठीक है? ओके मैम। Okay, ma'am. आप कंफ्यूज नहीं होना, किसी का आंसर यस आएगा, किसी का आंसर नो आएगा, Okay, ma'am. ठीक है? सृजन ma'am. कौर, अनम्यूट योरसेल्फ। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग बच्चे। Okay, ma'am. मैम जो सृजन, you want फोर्थ to ask क्वेश्चन any? है कैन हाँ हाँ यस हाँ मैम बोलो। मैम जो फोर्थ क्वेश्चन है ना मैम जो फोर्थ क्वेश्चन है आप उसका प्लीज ए पार्ट बोर्ड पे करवा के दिखाओगे। हाँ बेटा करवा देती हूँ। ये देखो, जिसको प्रॉब्लम आ रही है देखो बेटा, देखो आपके पास दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। मैम 6, हाँ जी बेटा। मैम हलीन कह रही है कि मुझे कुछ कंफ्यूजन है तो मुझे अनम्यूट करो। कोई बात नहीं, अभी पहले इस क्वेश्चन को दोबारा समझेगी वो, फिर उसके बाद में अनम्यूट कर। ओके मैम। देखो बेटा, अगर आप तो कर रहे हो ना 7 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर, तो आपके पास क्या आता है 13, यस ठीक मैम है ना? तो ये आपका क्या आ गया, लेस देन 14 सेंटीमीटर, यस मैम ठीक है ना? तो फिर आप लिखोगे नो, because the sum of the lengths of any two side is greater than the third side। ये आप लिखोगे because the sum of lengths of any two sides of a triangle is greater than the third side, ठीक है बेटा, समझ आ गई? मैम अगर हाँ हम जी। ये वाला जो आपने अभी जो आप अभी लिखवा रहे हो वो नहीं लिखना तो मैम हमको अभी भी वो लिखने में बिकॉज द सम ऑफ। हाँ यही लिखना है आपने, ठीक है? ओके मैम। मैम ये आपकी प्रॉपर्टी 2 है। यस मैम। मैम अगर मेरा 21 सेंटीमीटर आप सिंपल भी लिख सकते हो, आप सिंपल भी लिख दो तो सम ऑफ, आप लिख सकते हो इसमें सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ टू साइड्स इज लेस देन द थर्ड साइड, आप Okay, ऐसे भी ma'am. लिख सकते हो, ठीक है? अगर तो बेटा ये सेम क्वेश्चन, अगर आप सेम क्वेश्चन को Excuse me, देखो, ma'am. अगर इस वे से करते हो, एक मिनट बेटा पहले सुनो, 7 सेंटीमीटर प्लस 14 सेंटीमीटर अगर आप ऐसे प्लस करते हो, यस मैम 21 लाख Yes, ma'am. आपका आता है 21 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन 6 सेंटीमीटर, ऐसे भी आ सकता है, यस है ना? मैम। तो फिर आपका आएगा यस, और फिर बिकॉज लिख के तो आप स्टेटमेंट सेम लिखोगे, रीजन दोगे, ठीक है? समझ आइए? यस मैम। ठीक है, ये सारे पार्ट्स ऐसे ही करने हैं। यस हरलीन, आपने क्या पूछना बेटा?
आपको तो अनम्यूट हो आप। ये सानवी राजपूत, बेटा जिसने पूछना है, मैम एक्सक्यूज मी मैम। बच्चे जिसने पूछना है वही अपना हाथ ऊपर रखो, बाकी सारे लो कर दो। यस महकप्रीत। एक्सक्यूज मी मैम। यस बच्चे। मैम इससे पहले मैम अपनी जो व्हाइट बोर्ड पे जो लिखा हुआ है स्क्रीन पे, मैम उससे पहले आपने लिखा हुआ था थोड़ा सा सम। वो बेटा आपकी प्रॉपर्टी 2 दी हुई है ना बुक में, पेज नंबर 138। देख रहे हो, वहां लिखा है प्रॉपर्टी 2 में द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। यस मैम। आपने वो लिखना है रीजन। मैम अभी समझ आई? आपने लिखा हुआ था। हाँ मैंने यही लिखा था बेटा। मैम मैं वो लिख रही थी, मतलब साथ में, तो आपने वो अरेज कर लिया था, इसलिए हाँ मेरे तो को बेटा ये same सेम आएगा, यहाँ से उतार लो पेज नंबर 138 से। ठीक है, ओके मैम। ठीक है बेटा, समझ आ गई? यस मैम। ओके। मेहर गुप्ता, अनम्यूट योरसेल्फ। मेहर। यस मैम। मैम जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है वो हम बुक पे भी कर सकते हैं और नोटबुक पे भी कर सकते हैं। हाँ बेटा, लेकिन यहाँ ध्यान रखना जब ये क्वेश्चन आएगा यू हैव टू गिव रीजन। ओके ठीक है। मैम। तो मैम एक क्वेश्चन 3 में मेरी बात सुनो, क्वेश्चन 3 में आपकी रीजन आएगा प्रॉपर्टी 1, क्वेश्चन 4 में रीजन आएगा प्रॉपर्टी 2। यस ठीक है तो मैम जो मान्यता। हाँ जी बोलो। मैम जो ए पार्ट है, जब तो मैम हम वो दोनों कर ले, 14 और 6 को भी प्लस कर ले और 7 और 6 को प्लस कर ले। बेटा आपकी मर्जी है। ओके मैम। तो ठीक है। मैम वो रॉन्ग तो नहीं होगा ना? हाँ मैम तो अगर हम 7 और 6 को करेंगे तो वो रॉन्ग तो नहीं होगा ना? नहीं बेटा, वो रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी क्या है, आप कोई भी 2 साइड्स को प्लस कर सकते हो, वो बड़ी आनी चाहिए थर्ड साइड से। ठीक है। यस मान्यता, यू वांट टू आस्क एनीथिंग मान्यता? यस मैम। मैम आई हैव अ डाउट मैम हाँ कि जब बोलो हमने बेटा। रीजन लिखना होता है तो हम प्रॉपर्टी लिखेंगे कि बड़ी होनी चाहिए, या फिर हम लिखेंगे कि हमारी छोटी आ रही है इसलिए? हाँ रीजन में आप वही लिखोगे कि अगर तो नो आया है तो आप लिख सकते हो कि ये जो है क्यों नो आया है, क्योंकि ये जो इसका सम जो है वो इक्वल नहीं है, थर्ड साइड के ग्रेटर नहीं है। यस मैम। ठीक है मैम मान्यता। हम इधर प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं कि हमारा छोटा है। हाँ नहीं, पहले आप शो करोगे ना छोटा है साइन से, जैसे मैंने शो की है। यस मैम। यस शो मैम। करने के बाद प्रॉपर्टी लिख दो कि क्यों आया, ये रीजन दोगे, क्योंकि ये ओके मैम। उसके अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ये नहीं आया है। समझ आई? ओके। यस मैम। ओके बच्चे, आप अपने अपने वे से भी दे सकते हो मान्यता, आप अपने वे से भी लिख सकते हो, ओके रीजन दे मैम। सकते हो। सानवी ओके मैम। राजपूत, सानवी राजपूत अनम्यूट योरसेल्फ। मैम हमने शेप बनाना मेन है, आपने जो साइड्स हैं उनमें से जो हम ट्रायंगल्स बनाते हैं वो बनाना मेन है। बेटा जब बना भी सकते हो, या फिर आप सीधा, अगर आपका 1 मार्क का क्वेश्चन है तो यू हैव टू राइट ओनली नो, यस और गिव रीजन। ओके मैम। ठीक है। दृष्टि ओके गुप्ता, मैम। ये वैसे शॉर्ट में ही आते हैं तो बनाने की जरूरत नहीं है। दृष्टि ओके यस। मैम। एक्सक्यूज मी मैम, मैंने आंसर निकाला क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट, तो आप चेक करोगे, मेरे को लग रहा है वो गलत है। आपने कैसे किया बोलो जरा। मैम मैंने 9 और 11 को प्लस किया और वो 19 सेंटीमीटर आ रहा है, और 19 मैंने आ रहा है, yes 20 आ रहा है, 19 आ रहा है, 20 आ रहा है। मैम 11 प्लस 9 19 कितने? 11 प्लस 9 कितने होते हैं? 20। सॉरी मैम 20।
है ना, तो ठीक है ना, ग्रेटर देन द 8 सेंटीमीटर थर्ड साइड से वो जो है, ओके मैम, ठीक है ना, इसका आंसर इट्स यस। मैम इसका आंसर Yes, 20 ma'am. ही है। हाँ हाँ ठीक है। ऐश्विका, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? ऐश्विका, ओके मैम। एक्सक्यूज मी मैम, मैम जैसे थर्ड सेकंड क्वेश्चन में हमको ट्रायंगल करना है, तो मैम कोई भी ट्रायंगल ड्रॉ करके उसकी कोई भी इसमें आपने पहले आपको क्वेश्चन आपको 1 मिनट, आपको बोला है कि कैन यू, आपसे क्वेश्चन पुट किया है, आपको ये नहीं बोला कि ड्रॉ करो, यस मैम। है ना, आपको पूछा कैन यू कि आप कर सकते हो, आपको ये पूछा है। तो मैम अगर हमने ट्रायंगल ड्रॉ किया तो हम उसके साइड्स कोई भी ले सकते हैं ना? हाँ कोई भी ले सकते, कोई भी ले सकते, ठीक है। ओके मैम। मेहर, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? मेहर, ये सरीबा, अनम्यूट योरसेल्फ। Ariba? Ma'am, I want to ask you that, ma'am, I have done the whole 7.6 exercise on my book. So, is it necessary that I have to copy all the questions on my No, copy? no. This exercise no. Okay. Okay, ma'am. भूमिका, अनम्यूट योरसेल्फ। बेटा जितना कॉपी पे काम कम हो कोई बात नहीं, डजंट मैटर, बस समझ आनी चाहिए। Okay, ma'am. भूमिका, एक्सक्यूज मी you want to ask? मैम, मैंने फोर्थ क्वेश्चन का बी पार्ट निकाला है। 9 और 8 को प्लस करके 17 सेंटीमीटर आता है, तो 17 सेंटीमीटर ट्रायंगल का साइन 11 सेंटीमीटर 11 जो 17 सेंटीमीटर है वो 9 आएगा ना आंसर? बेटा यस आएगा। सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। आपने दो साइड्स को प्लस किया, वो बड़ा आया ना थर्ड साइड से। यस मैम। हाँ तो फिर यस आएगा ना, आपकी प्रॉपर्टी इसमें सॉल्व हो गई। ओके मैम। ठीक है, सानवी Okay, राजपूत, ma'am. ओके ओके बेटा। सृजन, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? सृजन, मैम वो बाय मिस्टेक हो गया। ओके बेटा। भूमिका, ओके ना, ओके बेटा। अब देखो बेटा, आपके पास है, मैं आज 5 मिनट्स आपको ये मैं रीड करवाऊंगी पेज नंबर 139, उसके रिलेटेड ही आपका क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 2 एंड ऑल द ट्रू Okay, फॉल्स, ma'am. वो आप लोग खुद Okay, ma'am. करोगे। ठीक है, कल हम लोग सर्कल्स करेंगे। Okay, ma'am. ओके मैम। Okay, ma'am. अब ध्यान से सुनो, देखो सबसे पहले हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल मींस इक्वल, इक्विलेटरल मींस इक्वल, अ ट्रायंगल हैविंग ऑल द साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। ये जो ट्रायंगल दिया हुआ है, आप अपनी बुक खोलो पेज नंबर 139, देखो इन सबकी साइड्स पे 3-3 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो इट मींस दैट ऑल द साइड्स आर इक्वल। जैसे कि देखो आपके पास ये ट्रायंगल है, ए बी सी, ये 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, all the sides are equal, so this is called equilateral triangle. Equilateral triangle, जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो हमें उसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब है आगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में कोई भी दो साइड्स इक्वल होती है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में कोई भी दो साइड्स इक्वल होती हैं, जैसे 4 सेंटीमीटर है, यहाँ पे भी 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है। अब ये देखो ये दो साइड्स इक्वल है, तो हम इसको बोलेंगे आइसोसेलेस। ठीक है, इक्विलेटर ट्रायंगल में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, आइसोसेलेस में 2 साइड्स इक्वल होती हैं, और स्केलिन में कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। स्केलिन में कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। देखो जैसे यहाँ 6 है, ये 5 है, ये 4 है, दैट इज कॉल्ड स्केलिन। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, देखो
Equilateral triangle, all sides are equal. Isosceles, two sides are equal. And scalene, no side is equal. All sides of different length. ठीक है, आज हम इतना ही पढ़ेंगे. इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, स्केलिन. किसी ने कुछ पूछना है? ये सानवी. मैम आप ये रिपीट कर सकते हैं? बेटा इक्विलेटरल ट्राइंगल, all sides are equal. Scalene, no side is equal. Isosceles, only two sides are equal. It is given in your book, page number 139. Yes, देखो, ma'am. इक्विलेटरल, आइसोसेलेस और स्केलिन. इक्विलेटरल मींस ऑल साइड्स आर इक्वल. देखो फिगर देखो साथ साथ. आइसोसेलेस में कोई भी दो साइड्स इक्वल होती हैं और स्केलिन में कोई भी साइड इक्वल नहीं होती. ओके मैम. मैम यहीं तक पढ़ा है ना? ये बेटा हाँ मैंने यही पढ़ाया है. आप क्वेश्चन नंबर 1 करोगे आज. ओके मैम. कल हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 1 और फिर मैं आपको बताऊंगी एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल. ये हम लोग Okay, करेंगे ma'am. फिर क्वेश्चन Thank you, 2 ma'am. कल. ठीक है. Okay, Anybody ma'am. want to Thank you, ask ma'am. anything? Anybody want to ask anything? Otherwise we wind up. Yes, Harleen, you want to ask anything? Yes, ma'am. I want to ask thing that we have to learn these definitions. Of course बच्चे, ये आपको fill in the blanks में आएंगी. No, ma'am. For tomorrow, if we will take test of these definitions. हाँ ये देखो जो भी मैं पढ़ाती हूँ मैंने कल पूछना ही पूछना है. Okay, ma'am. Okay. Navya, unmute yourself. Navya, you want to ask anything? Bhumika, मैम you मुझे want to ask anything? जो इक्विलेटर ट्राइंगल होता है उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं? हाँ जी बेटा, पेज नंबर 139 पे देखो ना, फिगर बनी हुई है साथ में. देखो सारे 3 लिखा हुआ है ना, यस मैम. तो सारी साइड्स इक्वल हुई ना. और मैम इक्विलेटर ट्राइंगल में दो साइड्स होती हैं इक्वल और हाँ. स्केलिन में कोई भी नहीं होती. कोई भी नहीं होती है. हाँ बस आपने इतना याद रखना. ठीक है. ओके मैम. फिर मैम इससे आप डेफिनेशन भी खुद बना सकते हो. ठीक है. ओके मैम. Yes, Ashwika, you want to ask anything? यस मैम. एक्सक्यूज मी मैम. मैम हमको यही तो करनी है पूरी ट्रायंगल लर्न करने से. मैम आपने तो वो करवाए ना. क्या करवाया बेटा मैंने? मैम आपने ट्रायंगल के 3 करवाए हैं तो मैम हमको सारे लर्न करने हैं ना. बेटा अभी आप इक्विलेटर, आइसोसेलेस और स्केलिन करो और एक्यूट एंगल ये अलग चीज है, ये मैं आपको कल बताऊंगी. ओके मैम. एक्यूट एंगल वो एक्यूट एंगल है, वो ऑब्ट्यूज एंगल है, वो एंगल की क्लासिफिकेशन है. ये ट्राइंगल की क्लासिफिकेशन. ओके मैम. ठीक है, वो डिफरेंट है, वो मैं आपको कल बताऊंगी. आहिस्ता आहिस्ता करेंगे, नो प्रॉब्लम. ठीक है. ओके मैम. नव्या, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? नव्या. मैम. हाँ जी बेटा. Ma'am, please send the recording. यस बेटा, रिपीट अगेन. Excuse me, ma'am. Please send a recording in group. बेटा मैम इज ऑलवेज सेंडिंग. you can see in the Kamal YouTube channel. Manyata, you want to ask anything? Yes, ma'am. Ma'am, if we have to draw any angles or triangle in our notebook, we have to use pencil or pen. Always pencil. आप जब भी कोई भी चीज ड्रॉ करते हो तो Okay, always use pencil. ठीक है. Okay, ma'am. ओके मैम. Okay बेटा. Anybody want to ask anything? Otherwise मैम. we end up the meeting. No, ma'am. मैम अगर ये मैम यहाँ पे सेंटीमीटर, अगर ये हमें ऐसे टेस्ट में आएंगे तो सेंटीमीटर हमें खुद ही नापने पड़ेंगे ना? स्केल से हमें खुद ही करने पड़ेंगे ना? बेटा आपको जैसे मैं आपको बताऊंगी, जब मैं आपका टेस्ट लूंगी ना, मैं आपको बताऊंगी कि कैसे. आपने सिर्फ डेफिनेशंस अभी फिलहाल लर्न करो.
जब आपको Ma'am, ड्रॉ okay, के लिए ma'am. आएगा वो आपके आगे हैं ड्रॉ वाले, वो मैं बताऊंगी ma'am. कैसे करना। ओके मैम। कल आप टेस्ट लोगे सारी डेफिनेशंस का? बेटा मैं कुछ भी पूछ लूंगी, जितना मैंने पढ़ाया है मैं कुछ भी पूछ सकती हूँ। ओके ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके बेटा, बाय बेटा। क्यों मैम? ओके मैम।